Suri. Remember, the last rites of the Hindu leader will be held today, but ahead of that, the son of the slain Neta has in fact spoken out, saying that he's upset with Chief Minister Bhagwant Mann, essentially saying Bhagwant Mann hasn't called them yet after the murder of Sudhir Suri. In fact, Manik Suri, who's the son of Sudhir Suri, has demanded action against the killers. Right, so Hindu leader Sudhir Suri's murder case and the son of slain Neta Sudhir Suri's son has in fact spoken out, saying that he's upset with Chief Minister Bhagwant Mann, saying that CM hasn't called yet to express condolences. In fact, he also went on to say that this murder is an act of terror. These are the words of Sudhir Suri's son, Manik Suri. Remember, the last rites of Sudhir Suri, the Shiv Sena leader who was shot dead in Amritsar, is going to be held today. Right, so this just to recap for our viewers that Sudhir Suri's son Manik Suri has expressed his disappointment with Chief Minister of Punjab Bhagwant Mann, essentially saying that it is painful that the Chief Minister hasn't called yet. Remember that the Punjab government has in fact been under attack by the opposition leaders over this entire issue. Essentially, Punjab's law and order situation coming into question once again, and Sudhir Suri's son definitely essentially calling this an act of terror, and at the same time saying that it hurts the fact that Bhagwant Mann hasn't in fact called and expressed condolences over this incident. Right, more breaking updates coming in with regard to that. And Sikhs for Justice, a banned outfit separatist organization, has in fact also announced that they're going to give 10 lakh rupees to defend the accused who has been arrested in this case. Remember, an accused has been picked up by the police. He's currently in police remand, and the banned separatist organization has in fact now said that they are going to extend legal aid to the accused who's been arrested. Right, let me go across to my colleague Manoj for more on this. Manoj, जिस तरह से अभी खबर आ रही है, अगर हम पहले बात करें सुधीर सूरी के फैमिली मेंबर्स की, उनका ये कहना है कि अभी तक भगवंत मान की कोई फोन कॉल नहीं आई, उन्होंने कोई कंडोलेंस एक्सप्रेस नहीं किया। इस बैकड्रॉप में ये सवाल उठता है कि पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके बारे में वैसे भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, और पर्सनल तौर से सुधीर सूरी की फैमिली जो है उन्होंने ये काफी क्लियरली बोला है, मानिक सूरी ने, कि पंजाब गवर्नमेंट से कोई ऐसा कंडोलेंस एक्सप्रेस का मैसेज भी नहीं आया, एंड दे आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एज एन एक्ट ऑफ टेरर। बिल्कुल, देखिए, परिवार में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि पंजाब सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं किया गया। और हम उनके भाई से और बेटे से बात कर रहे थे, तो बृजमोहन सूरी जो उनके भाई हैं, उनका कहना था कि ना कोई मैसेज आया है, ना कोई मिलने आया है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है क्योंकि पुलिस सुरक्षा के बीच में उनके भाई की हत्या की गई है। तो इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी, और अभी कुछ देर पहले उन्होंने बताया था कि कुछ हिंदू संगठनों के जो नेता हैं उनको नज़रबंद किया गया है। इसको लेकर भी वो काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा जब तक वो उनको छोड़ा नहीं जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सूचना है कि सभी को छोड़ा गया है और बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो अब यहाँ पहुँचने लगे। और आप मेरे पीछे देखेंगे कि जो तैयारी है अंतिम यात्रा की वो लगभग पूरी हो चुकी है। एक एम्बुलेंस है जिस पर बड़ी सी तस्वीर सुधीर सूरी की लगाई गई है, फूलों से एम्बुलेंस को सजाया गया है, और यहाँ से ये एम्बुलेंस के माध्यम से अंतिम यात्रा है। ये दुर्गाना मंदिर
तक जाएगी, वहां पर जो शमशान भूमि है वहां पर जो अंतिम संस्कार है वो किए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर सुधीर सूरी के करीबी और उनके समर्थक मौजूद हैं। सर ये बताया कि जो नजरबंद किया गया था नेताओं को, क्या छोड़ दिया गया? सबको छोड़ दिया गया है। कुछ लोकल थे वो पहुंच गए हैं सब, बाकी जो बाहर हैं उनको कर दिया, किसी को आधा घंटा किसी को 2 घंटे लगेंगे। जो रास्ते में रोके हुए थे लड़के उनसे बात हो गई है, वो पहुंच गए हैं, गाड़ियां छोड़ दी हैं उनकी। जो अपने घर में नज़रबंद थे उनको भी सील कर दिया, लेकिन उनको आते टाइम लगेगा। हम यहाँ से 5-10 मिनट में अंदर पंडित जी अपना करा रहे हैं, तो करके यात्रा शुरू। तो निकलने की तैयारी है? तैयारी है जी, तैयारी है। ठीक है, तो देखिए अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और जिन नेताओं को नजरबंद किया गया था उनको छोड़ा भी गया है। जी मनोज, जैसे आप कह रहे थे कि अभी के लिए तो जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है, बट फैमिली मेंबर्स का क्या कहना है कि क्या वो संतुष्ट है अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है पंजाब पुलिस की कार्रवाई से, वो संतुष्ट है? देखिए, पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है उससे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो उनकी मांगें थी वो मान ली गई हैं। उसके बाद वो संतुष्ट हुए और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग थी जो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे एक संगठन है उसके प्रमुख हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR में नाम दर्ज किया जाए। उसको लेकर पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक वो मांग लगभग मान ली है पंजाब पुलिस ने, और सुरक्षा व्यवस्था जो परिवार की है उसकी भी हामी भरी गई है। उसके लिए भी पुलिस एग्री हुई है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, शहीद का दर्जा देने के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। और इन मांगों को मानने के बाद जो सहमति बनी थी अंतिम संस्कार को लेकर, आज जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी मनोज, जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऑन दिस एंटायर इंसिडेंट. Of course, we are going to track all the developments with you, but essentially the family members at the moment have agreed for last rites, but they are not particularly happy with the investigation by the Punjab police so far, and also of course expressing clearly that they are unhappy with the fact that the Punjab chief minister has not yet come out vocally and expressed condolences on this entire matter. That's the reaction of the family members that we're getting for you.